In the name of Allah, the most merciful and beneficent. My dear viewers, Assalamu alaikum. Today I have brought explanation of autobiographical notes written by James Baldwin. I hope you will find this lecture easy, and it will enable you to understand the explanation of autobiographical notes. Little introduction about the author. His full name was James Arthur Baldwin. He was born on 2nd August 1924, New York, the United States. He died on 1st December 1987, St. Paul de Vence, France, at the age of 63. St. Paul de Vence is a community it's a commune in France. He was essayist, novelist, playwright, whose eloquence and passion on the subject of race in America made him one of the most important voices of the 20th century. Remember, my dear viewers, his main theme of all his essays, his novels, is race, because he himself belonged to a black race. A writer of exceptionally clear and psychologically penetrating prose, Baldwin addressed race relations with deft complexity and incisive anger. He was also one of the first black writers to include queer themes in fiction, notably in Giovanni's Room, that was published in 1956, writing with a frankness that was highly controversial at that time. His works include the novels Go, Tell It on the Mountain. It's a very famous novel of Baldwin. It was published in 1953, and Another Country. It was published in 1962. So there are two famous novels, Go, Tell It on the Mountain and Another Country. Then there are the plays, The Amen Corner in 1954 and Blues for Mr. Charlie in 1964, and the essay collections Nobody Knows My Name in 1961 and The Fire Next Time 1963. So these are some of his famous works, but remember one thing, that his main theme is the race, which he addressed with deft complexity and incisive anger. So he had the main role in American civil rights movement. So this was a brief introduction of the author. Now he starts his autobiography. यहाँ वो अपने बारे में लिखता है कि I was born in Harlem 31 years ago. Now, when he wrote this autobiography, his age was 31 years. I began plotting novels at about the time I learned to read. He says that once I started reading, I learned how to read, or I developed reading skills. I started plotting the novels. I started writing the stories. The story of my childhood is the usual bleak fantasy, very dark imagination. He says it is very unpleasant. अगर मैं अपने बचपन के बारे में लिखूं, बचपन को याद करूं, तो ये कुछ इतना खुशगवार वाकया नहीं है. मेरा बचपन जो था वो बहुत डार्क रहा. Bleak fantasy. It's a dark imagination. It's very grim. It's very serious. And we can dismiss it with the restrained observation that I certainly would not consider living it again. He says that it would be sufficient to say, instead of describing my childhood, I will sum up my childhood in one word, in a phrase that
I certainly would not consider living it again. मेरा बस चले, यानी मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरा बचपन लौट के वापस आए. So it was quite he means to say कि मेरा बचपन बहुत ही नाखुशगवार था. In those days, my mother was given to the exasperating and mysterious habit of having babies. Exasperating, inclined to, used to, in the habit of. Because these were the black people, they didn't have any awareness. They were definitely kept away from awareness and from education, from civilization. So they were just like brutal sort of people. ये बहुत brutal होते थे, जंगली से लोग थे, क्योंकि इनको हर चीज से दूर रखा गया, civilization से दूर रखा गया, education से. They were the suppressed people. इनको कोई awareness नहीं थी. So female used to have babies, a lot of babies, as far as they could have. So exasperating, they were used to, they were inclined to, they were forced to have, and mysterious habit of having babies. So as they were born, I took them over with one hand. Being the eldest child, he says that जैसे ही बच्चे पैदा होते थे, मैं उनको एक हाथ में बच्चा संभालता था, पकड़ता था, यानी he used to help his mother. और ये होता था कि बड़े बच्चे जो होते थे वो छोटे बच्चों को ले लेके इधर उधर घूमते थे अपनी मदर्स को थोड़ा हेल्प आउट करने के लिए. So he says being the eldest one, मैं एक हाथ में बच्चे को पकड़ता था एंड आई वॉज सो क्रेजी अबाउट रीडिंग बुक्स. और बुक्स के मामले में मैं इतना क्रेजी था, बुक्स पढ़ने का मुझे इतना शौक था कि एक हाथ में मैं बच्चा पकड़ता था और दूसरे हाथ में मेरे किताब हुआ करती थी. द चिल्ड्रन प्रॉबली सफर्ड दो दे हैव सिंस बिन काइंड इनफ टू डिनाई इट. और ये कहते कि जाहिर है बच्चे जो हैं उनको मैं बहुत केयरिंग से तो हाथों से तो नहीं पकड़ता था उनको, मैं उनको भी मिसट्रीट करता था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो था वो अपनी बुक्स में था. सो चिल्ड्रन प्रॉबली दे माइट हैव सफर्ड दो दे हैव सिंस बिन काइंड इनफ टू डिनाई इट. वो कभी इस बारे में इसका इजहार नहीं करते थे कभी, और समटाइम्स वो डिनाई करते थे कि ऐसा नहीं है, हम वी वर कंफर्टेबल. एंड इन दिस वे आई रेड अंकल टॉम्स केबिन एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज ओवर एंड ओवर अगेन. ये अंकल टॉम्स केबिन जो नॉवल है, इट इज़ बाय हैरियट बीचर स्टो. ये अंकल टॉम्स केबिन उसने लिखा था, और जो मेजर थीम इसका है द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज प्रॉपर्टी. ये भी ब्लैक पीपल पे लिखा गया था, और प्रॉब्लम ऑफ यानी स्लेवरी का प्रॉब्लम ही यहाँ पे जो ब्लैक लोगों के दरमियान था उसको ही डिस्कस किया गया. इसी तरह अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है वो एज इट्स अ फेमस नॉवल बाय चार्ल्स डिकन ने ये नॉवल लिखा, और इसने बार बार ये पढ़ा. ठीक है, दिस नॉवल वॉज सेट इन लंडन ड्यूरिंग द बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो दीज वर द फेमस नॉवल्स, एंड ही सेड दैट ही read these novels again and again in this way. In fact, I read just about everything I could get my hands on. कहते कि कोई ये नहीं था कि मैं मेरी कोई ख़ास चॉइस थी जो मैं पढ़ता था. मेरे हाथ में जो भी बुक आती थी मैं पढ़ता था, बिकॉज आई वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, एक्सेप्ट द बाइबल. सिर्फ बाइबल मैं शौक से नहीं पढ़ता था बिकॉज आई वॉज फोर्स टू रीड इट. मैं अपनी मर्जी की चीज़ें पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझ पे बाइबल को फोर्स किया गया था कि मैं बाइबल ही पढ़ूँ, तो मेरा इतना इंटरेस्ट उसमें नहीं था. I must also confess that I wrote a great deal, and my first professional triumph, in any case, the first effort of mine to be seen in print, occurred at the age of 12 or thereabouts, when a short story I had written about the Spanish Revolution won some sort of prize in an extremely short-lived church newspaper. वो कहते हैं कि मुझे ना पता चला कि मैंने कब इतना पढ़ते पढ़ते, मुझे तो पढ़ने का शौक था, लेकिन पढ़ते पढ़ते कब मैंने लिखना शुरू कर दिया, आई डिडंट नो. और मुझे तब पता चला कि इट वॉज वर्थ रीडिंग, माई राइटिंग वॉज वर्थ रीडिंग व्हेन आई गॉट अ प्राइज ऑन राइटिंग अबाउट द स्पेनिश रेवोल्यूशन. स्पेन का जो रेवोल्यूशन था मैंने उस पर लिखा और मुझे उस पर प्राइज मिला, क्योंकि इट वॉज पब्लिश्ड इन अ न्यूज़ पेपर. शॉर्ट लिव न्यूज़ पेपर होता था चर्च का जो आता था और फिर वो ख़त्म हो जाता था. आई रिमेंबर द स्टोरी वॉज सेंसर्ड बाय द लेडी एडिटर, और कुछ थोड़ा सा इसको क्रिटिसाइज किया गया, और आई रिमेंबर कि इस स्टोरी को सेंसर भी कर दिया गया, एक लेडी एडिटर ने इसको किया. दो आई
डोंट रिमेंबर वाई एंड आई वॉज आउटरेज्ड. मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत उस टाइम पे आई बिकेम फ्यूरियस, मुझे बहुत गुस्सा आया. ऑल्सो रोट प्लेज एंड सॉन्ग्स फॉर वन ऑफ विच आई रिसीव्ड अ लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम मेयर LaGuardia एंड पोइट्री अबाउट विच द लेस सेड द बेटर. वो कहते कि मैंने तो बहुत सी प्लेज लिखे, सॉन्ग्स लिखे, जिसपे मुझे कहते कि मेयर लगार्डिया का एक मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस का लेटर भी आया, और मैंने पोइट्री भी लिखी. और लेकिन ये कि इसके बारे में इतनी बात ना ही की जाए तो बेहतर है. माई मदर वॉज डिलाइटेड बाई ऑल दीज गोइंग्स ऑन, बट माई फादर वॉजंट. ही वॉन्टेड मी टू बी अ प्रीचर. When I was 14, I became a preacher, and when I was 17, I stopped. Very shortly thereafter, I left home, for God knows how long I struggled with the world of commerce and industry. I guess they would say they struggled with me. And when I was about 21, he says that I went to earn the things. So I entered into the industrialized world. मैं भी industrialized world में दाखिल हो गया, कमाने लगा, लेकिन I just struggled with it. I wanted to get rid of it because he was a born writer. He was a born reader and a born writer. So वो कहते हैं कि मैं तो being a writer, I was very much concerned with the writings, with the reading. So this commerce and industry has nothing to do with me, with my nature. तो मैं इनसे छुटकारा हासिल करना चाहता था. I must say कि ये मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहते थे, because I was not a good worker. So when I was about 21, I had enough done of a novel to get a Sexton Fellowship. अब ये सेक्सटन फेलोशिप जो था, ये इट वाज डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई हाई अचीविंग स्टूडेंट्स. ये जो हाई अचीविंग स्टूडेंट्स होते थे विद अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर अ करियर इन द पब्लिक सेक्टर. तो सेक्सटन फेलोशिप के ज़रिए इसने एक नावल लिखा. When I was 22, the fellowship was over. The novel turned out to be unsaleable. Unsaleable यानी ये ज़्यादा सेल ना हुआ. And I started waiting on tables in a village restaurant and writing book reviews, mostly as it turned out. और उसने कहा कि चूँकि मेरे novels सेल नहीं हो रहे थे, तो मुझे ज़ाहिरी बात है it cost me a lot. यानी मुझ पे बहुत खर्चा आता था, इसीलिए मैंने सिर्फ इक्तफ़ा किया कि मैं सिर्फ बुक रिव्यूज़ लिखने लगा. And as it turned out, about the Negro problem, concerning which the color of my skin made me automatically an expert. और जाहिर बात है, I myself belong to the black race. मैं भी black race से belong करता था, तो मेरे लिए बहुत easy था reviews लिखना, black लोगों के ऊपर जो books लिखी जाती थी, जो भी उनके reviews लिखना, या खुद उनके बारे में उनको explain करना. Did another book in company with photographer Theodore Palotsky about the storefront churches in Harlem. This book met exactly the same fate as my first fellowship, but no sale at all. It was Rosenwald Fellowship, but there was no sale of that book. By the time I was 24, I had decided to stop reviewing books about the Negro problems, which by this time was only slightly less horrible in print than it was in life. He says that reviewing the books which are written on the Negro problems was quite risky. ये बहुत चैलेंजिंग था, बहुत रिस्की था. वो कहते हैं कि इतना प्रिंट में, जाहिर बात है बुक्स तो लिखने वाले लिख लेते थे, वो इतना डेंजर नहीं था उनके लिए, हार्मफुल नहीं था, जितना उसको रिव्यू करने वाले, उसको एक्सप्लेन करने वालों के लिए. वो कहते हैं सो माई लाइफ वॉज एट रिस्क, सो आई स्टॉप्ड डूइंग दैट. And I packed my bags and went to France, where I finished God Knows How. Go tell it on the mountain. उसने novel लिखा God Knows How. Go tell it on the mountain. He finished it there in France. Or remember, जब at the age of 63, he resided in France and he died there. Now he says that any writer, I suppose, feels that the world into which he was born is nothing less than a conspiracy against the cultivation of his talent, which attitude certainly has a great deal to support it. He says that writers are always in a difficult situation. They always face challenges. कोई भी writer है जो लिखता है, किसी topic पे लिखता है, उसको किसी न किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है. जिस एरिया में रहता है, जिस सोसाइटी के बारे में लिखता है,
उसे ऐसा लगता है कि इट इज़ नथिंग लेस देन अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कल्टिवेशन ऑफ हिज टैलेंट। वो उसके टैलेंट को कर्ब करने की कोशिश करते हैं, यानी वो ओपनली किसी चीज़ के बारे में नहीं लिख सकता। गवर्नमेंट है वो बैन लगा देती है, सेंसर कर देती है नॉवेल्स को। सो वो इस बात पे वो बहस कर रहा है, वो कह रहा है कि कोई राइटर भी आज़ाद नहीं है लिखने के लिए, which attitude certainly has a great deal to support it. On the other hand, it is only because the world looks on his talent with such a frightening indifference that the artist is compelled to make his talent important. So he says that क्योंकि शायद दुनिया जो है वो उससे डरती है, उसके टैलेंट से डरती है, उसके सच लिखने से डरती है, कि आर्टिस्ट जो होता है वो कंपेल्ड, वो ही इज फोर्स्ड टू मेक हिज टैलेंट इम्पॉर्टेंट। फिर वो और ज़्यादा फोर्सफुली चीज़ों को लिखता है, वो करता है, यानी वो उस चैलेंज को का सामना करने के लिए वो घबराता नहीं है, वो बल्कि और फोर्सफुली लिखना शुरू कर देता है। सो दैट एनी राइटर लुकिंग बैक ओवर इवन सो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एज आई एम हियर फोर्स टू असेस फाइंड्स दैट द थिंग्स विच हर्ट हिम एंड द थिंग्स विच हेल्प्ड हिम कैन नॉट बी डिवोर्स्ड फ्रॉम ईच अदर। वो कहते हैं कि राइटर की जिंदगी में दो चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ें होती हैं जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ होता है, कि वो बहुत दुख में होता है, एंड दीज थिंग्स आर नॉट कर्स बट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है कि वो लिखता जाता है, ठीक है, वो उसको हिम्मत, यही इन्हीं चीज़ों की बेस पे तो वो आगे बढ़ता है, वो लिखता है। एंड द थिंग्स विच हेल्प्ड हिम कैन नॉट बी, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उसकी हेल्प करती हैं, कुछ चीज़ें उसको हर्ट करती हैं, लेकिन ये दोनों लिंक्ड होती हैं। इनके बगैर एक राइटर अच्छा राइटर नहीं बन सकता, जब तक वो हर्ट नहीं होता, जब तक वो उसे हेल्प नहीं मिलती। दोनों चीज़ें उसके लिए फ़ायदेमंद हैं, द वंस विच फेवर हिम, द वंस विच हर्ट हिम। He could be helped in a certain way only because he was hurt in a certain way. And his help is simply to be enabled to move from one conundrum to the next. और ये जो हेल्प होती है, चीज़ें जो उसको हर्ट करती हैं वो उसको आगे बढ़ाने में मदद देती हैं, और जो हेल्प करती हैं दे पुश देम अहेड। सो फ्रॉम वन चैलेंज टू अनदर, फ्रॉम वन conundrum टू द नेक्स्ट, एक चैलेंज से दूसरी चैलेंज की तरफ वो आगे बढ़ता जाता है। वन इज टेम्प्टेड टू से दैट ही मूव्स फ्रॉम वन डिजास्टर टू द नेक्स्ट। When one begins looking for influences, one finds them by the score. और कुछ अपने काम को जब वो देखता है कि कुछ काम उसके जो हैं वो बहुत उनको सराहा गया, उनको अप्रिशिएट किया गया, तो ये चीज़ें उसको इनकरेज कर देती हैं। I haven't thought much about my own, not enough anyway. I hazard that the King James Bible and the rhetoric of the storefront church, something ironic and violent and perpetually understated in Negro speech, and something of Dickens' love for bravura. Bravura means ostentatious speech, which are rich in flowery words. ठीक है, बहुत ही एनरिचिंग वर्ड्स, बहुत डिकन्स जो है वो ऐसी वोकेबलरी यूज करता था। हैव समथिंग टू डू विद मी टुडे बट आई वुडंट स्टेक माई लाइफ ऑन इट। ही सेज दैट कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो कि जिन्होंने मुझे कुछ इन्फ्लुएंस दिया, जिन्होंने मुझे मशहूर करने में मदद दी। Likewise, innumerable people have helped me in many ways, but finally, I suppose the most difficult, most rewarding thing in my life has been the fact that I was born a Negro and was forced therefore to effect some kind of truce with this reality. वो कहते हैं कि कुछ चीज़ों ने मेरी हेल्प की, मुझे मशहूर किया, मुझे फेमस बनाया, कुछ चीज़ों ने मुझे हर्ट किया, दे ड्रू मी बैक, मुझे पीछे खींचने की कोशिश की। ठीक है, वो कहते हैं कि जिंदगी में, एक राइटर की जिंदगी में ये चीजें चलती रहती हैं। ही एग्रीज विद इट, और वो इस पे वो एग्रीमेंट शो करता है, वो ही एग्रीज विद इट। लेकिन वो कहता है कि सबसे जो बिटर फैक्ट मेरी जिंदगी का ये है कि आई वॉज बॉर्न अ नीग्रो। मैं एक ब्लैक रेस से बिलोंग करता हूँ, मैं एक स्लेव्स के घर में मैं पैदा हुआ, and was forced therefore to effect some kind of truce with this reality. And I agree with this reality. Truce, by the way, is the best one can hope for. This is an agreement. He says that one of the difficulties about being a Negro writer,
this is not spatial pleading, since I don't mean to suggest that he has it worse than anybody else, is that the Negro problem is written about so widely. वो कहते हैं कि नीग्रो राइटर होना जो है, उनकी मुश्किलात में से एक मुश्किल ये भी है कि नीग्रो के मसाइल पे इतना ज़्यादा लिखा जा चुका है पूरी दुनिया में. पूरी दुनिया के राइटर्स ने नीग्रो के मसाइल को, स्लेवरी के मसाइल को बहुत ज़्यादा उजागर किया अपनी राइटिंग्स में. द बुक शेल्व्स ग्रोन अंडर द वेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एवरी वन देयर फॉर कंसिडर्स हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड. So, no one is ignorant about the problems of the Negroes. No one is ignorant about the problems of slavery. कोई भी ऐसा नहीं है जो ये ना कहता हो कि उसको नीग्रो के प्रॉब्लम्स का नहीं पता. ये इतना लिखा जा चुका है कि every other person is well informed about the problems of the slavery and Negroes. Now going to the next paragraph. Now coming to this slide. There is an important thing here which he explains. जो important चीज़ें हैं इस स्लाइड पे वो ये है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि कुछ ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स हैं लोगों के, कुछ आपके खिलाफ होते हैं, कुछ आपके हक में होते हैं. ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि किस चीज़, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके हक में जो एटीट्यूड्स होते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हों. इन द लॉन्ग रन मे बी they are false. ठीक है, आपको नहीं पता होता कि कौन सी चीजें आपको ज्यादा पेन देती हैं. सो ही सेज दैट रीइंफोर्स ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स. ये जो लोगों के ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स होते हैं ना, इनको रीइंफोर्स कर रही हैं ये चीजें. क्या? ऑफ ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स देयर आर ओनली टू, for or against, and I personally find it difficult to say which attitude has caused me the most pain. कहते हैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ. for writer the case is the same. कुछ एटीट्यूड्स आपके हक में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, लेकिन आपको क्या पता जो एटीट्यूड्स आपके हक में हो सकता है दे आर फॉल्स. ठीक है, वो फॉर द टाइम बीइंग आपको खुशी दे रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको पता चला कि दे वर अगेंस्ट यू. वो आपको किसी अपने मकसद के लिए यूज कर रहे हैं. So, I am speaking as a writer from a social point of view. I am perfectly aware that the change from ill will to good will, however motivated, however imperfect, however expressed, is better than no change at all. This, dear viewers, these are very important lines. You should underline them. You should concentrate on them. ये बड़ा अच्छा कोट है जेम्स बॉल्डन का, और उसने कहा कि अगर आप ये डर के बैठ जाएं और आप अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें, कोई चेंज लाने से अगर आप डरते हैं तो ये आपकी गलती है. वो कहता है कि चेंज इज़ नेसेसरी टू मेक प्रोग्रेस. चाहे ये प्रोग्रेस इम्परफेक्ट हो, चाहे ये प्रोग्रेस अनप्लेजेंट हो, आखिर चेंज तो आता है जिंदगी में. आप आगे तो बढ़ते हैं. ऐसा कभी नहीं होता कि चेंज डज नॉट ब्रिंग अ फ्रूटफुल रिजल्ट. ऐसा कभी नहीं होता. आपको फायदा जरूर मिलता है. सो हाउएवर मोटिवेटेड, हाउएवर इम्परफेक्ट, हाउएवर एक्सप्रेस्ड इज बेटर देन नो चेंज एट ऑल. उन लोगों से आप फिर भी बेहतर होंगे जो अपनी जिंदगी में कोई चेंज नहीं लाना चाहते. ठीक है, चेंज इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस. आगे वो आपको समझ आ जाएगी कि वो लाइंस में, आगे लाइंस में वो कैसे कह रहा है. बट इट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द राइटर एज आई सी इट टू एग्जामिन एटीट्यूड्स, टू गो बीनीथ द सर्फेस, टू टैप द सोर्स. वो कहता है लेकिन राइटर का काम ये है कि वो लोगों के एटीट्यूड्स को एग्जामिन करे. उसको चीज की तय में जाना बहुत ज़रूरी है, उसको हकाइक को समझना बहुत ज़रूरी है. टू टैप द सोर्स, टू टैप द बेस ऑफ दैट प्रॉब्लम, यानी जिस चीज़ के बारे में वो लिखना चाहता है उसको उस पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. ही मीन्स टू से दैट चेंज कैन बी चैलेंजिंग, बट प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट एनी चेंज. सो he says a good writer should have a good research skills. एक अच्छे राइटर के अंदर अच्छी रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए. He or she should know the subject of discussion deeply. He should write relevant things. ये राइटर की ड्यूटी है, ये राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. To tap the source of the things, to go beneath the surface of the things.
So from this point of view, the Negro problem is nearly inaccessible. अगर आप इस बात को देखते हैं कि राइटर को जाना चाहिए, हकाइक को देखना चाहिए, सोर्सेस को टच करना चाहिए, तो नीग्रोस के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है, उन पे तो बहुत ज्यादा किताबें लिखी गई हैं, लोगों ने इतना एट लेंथ जाके उनको डिस्कस किया है, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स जो हैं अब भी एड्रेस नहीं हो सके. उसकी वजह यह है कि नोबडी वेंट बीनीथ द सर्फेस, नोबडी टैप्ड द सोर्स. कोई भी सब जो है वो उन्होंने सतही तौर पे इन चीजों को डिस्कस किया है. कोई भी डीपली जाके उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सका, कोई भी हकाइक को नहीं जान सका. So he says that their problem is still inaccessible. अभी तक उनके प्रॉब्लम तक कोई नहीं पहुंच सका, जबकि इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं उन पे. It is not only written about so widely. It is written, he says, it is not only written about so widely, it is written about so badly. बहुत ना सिर्फ ये बहुत ज्यादा लिखा गया बल्कि बहुत बुरी तरह उनके बारे में लिखा गया. दैट्स वाई nobody could reach the problem, the root of the problem. It is quite possible to say that the price a Negro pays for becoming articulate is to find himself at length with nothing to be articulate about. यानी नीग्रो को उस पे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, उनके बारे में इतना लिखा गया. तो for becoming articulate means for becoming famous. नीग्रो को फेमस होने का क्या फायदा मिला? यानी उसको उसके असल चीज, उसके प्रॉब्लम को तो डिस्कस ही नहीं किया गया. सो एट लेंथ विद नथिंग टू बी आर्टिकुलेट अबाउट. फॉर एग्जाम्पल ही गिव्स एन एल्यूजन हियर, यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है. यू टॉट मी लैंग्वेज, सेज कैलेबॉन टू प्रोस्पेरो, एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज आई नो हाउ टू कर्स. तो ये शेक्सपियर के का जो प्ले है द टेम्पेस्ट, उससे लिया गया है, जिसमें कैलेबॉन ने प्रोस्पेरो को कहा कि तुमने मुझे लैंग्वेज सिखाई और मैंने इसमें अपना फायदा क्या देखा कि आई नो हाउ टू कर्स. उसमें से अपने फायदे की चीज निकाल ली मैंने उस लैंग्वेज में से. यानी उसका यूज तो मैंने कुछ ना किया, वो ये कि हाउ टू कर्स अदर्स, दूसरों को बुरा भला कैसे कहना है इस लैंग्वेज में, उनको गाली कैसे देनी है. वो कहता है कि मैंने तो अपने फायदे की उसमें से चीज निकाल ली. तो यही हुआ, निग्रोस के बारे में इतना ज्यादा लिखा गया, लोगों ने क्या किया कि अपने अपने फायदे की, लोगों ने अपने फायदे देखे, उन्होंने अपने फायदे की चीजें निकाल ली उसमें से. Now, nevertheless, social affairs are not, generally speaking, the writer's prime concern, whether they ought to be or not. It is absolutely necessary that he establishes between himself and these affairs a distance which will allow at least for clarity, so that before he can look forward in any meaningful sense, he must first be allowed to take a long look back. The writer means to say that he has to see his past. He has to relocate himself in his own past. उसने अपने आप को relocate करना है अपने past के साथ, वो अपने आप को detach नहीं कर सकता. Writer has to look back. उसे अपनी history देखनी है. In the context of the Negro problem, neither whites nor blacks, for excellent reasons of their own, have the faintest desire to look back. कहते हैं कि मसला यही रहा कि Negro problem को ना तो white race ने, ना even black himself, ये जो ब्लैक लोग हैं वो खुद भी अपने पास्ट को नहीं देखना चाहते, वो जाना ही नहीं चाहते अपने पास्ट में. जैसे राइटर ने खुद भी अपने बहुत स्टार्टिंग में उसने कहा था कि मेरा बचपन ऐसा गुजरा कि मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बचपन या मेरा पास्ट जो है वो मुझे वापस मिले. तो यही बात है, कहते हैं ना तो वाइट्स उनके बैकग्राउंड को देख रहे हैं, उनकी हिस्ट्री को देख रहे हैं, और ब्लैक खुद भी नहीं देखना चाहते. ठीक है, हैव द फेंटेस्ट डिजायर, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो पीछे मुड़ के देखें. बट आई थिंक दैट द पास्ट इज ऑल दैट मेक्स द प्रेजेंट कोहेरेंट, and further that the past will remain horrible for exactly as long as we refuse to assess it honestly. वो कहता है कि जब तक पास्ट को आप नहीं देखेंगे, वो पास्ट ही है जो आपके प्रेजेंट को कोहेरेंट बनाता है, उसको ही मेक्स इट यूनिफाइड. Now that the past will remain horrible, past आपके लिए उसे horrible रहेगा जब तक कि आप you will refuse to assess it honestly. I know in any case that the most crucial time in my own development came when I was forced to recognize that I was a kind of bastard of the West.
When I followed the line of my past, I did not find myself in Europe but in Africa. वो कहते ये होता है, दिस इज द फैक्ट. वो कहते हैं फैक्ट तो मैं आपको बताऊंगा. ज़ाहिर है लोग क्यों घबराते हैं अपने पास्ट को, अगर अनप्लेजेंट है तो उसमें जाने से क्यों घबराते हैं? इसलिए कि ये उनके लिए बड़ा क्रूशल टाइम होता है, ये उनको डिस्टर्ब कर देता है. वो कहते हैं मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ. जब मैंने अपने आप को पास्ट में देखा, अब मैं यूरोप में हूँ, मैं फ्रांस में बैठा हुआ हूँ, मैं आई एम फार अवे फ्रॉम माई बैकग्राउंड, फ्रॉम माई ओन होम टाउन. मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन वो कहता है कि आई स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग माई सेल्फ दैट आई वॉज अ काइंड ऑफ बास्टर्ड ऑफ द वेस्ट. मैं वेस्ट में रह रहा हूँ, बट आई एम स्टिल द सेम. When I followed the line of my past, I didn't find myself in Europe. यानी मैं यूरोप में रहा था, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ, मैं अपने पास्ट को देखता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है मैं अब भी अफ्रीका में हूँ. Similarly, and this meant that in some subtle way, in a really profound way, I brought to Shakespeare, Bach, Rembrandt, to the stones of Paris, to the cathedral at Chartres, and to the Empire State Building, a spatial attitude. Bring to is definitely phrasal verb and it means equal to. I brought something equal to, to make something equal to different amount. वो कहते हैं कि I brought to शेक्सपियर, बाक, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की बात कर रहा है. बाक जो है वो रिचर्ड बाक अमेरिकन राइटर है, वो उसकी बात कर रहा है. वो कहता है आई वॉन्ट टू अटैच माई सेल्फ टू दैम, आई एम फॉन्ड ऑफ दीज राइटर्स, आई हैव डेवलप्ड स्पेशल लाइकिंग फॉर दैम. रैम्ब्रेंट है, ही वॉज अ डच पेंटर एंड आर्टिस्ट. टू द स्टोन्स ऑफ पेरिस, these are the distinctive buildings of Paris. स्टोन, लाइम स्टोन पेरिस का बहुत मशहूर है, और पेरिस की जो कैपिटल है उसकी तमाम तर मोस्टली जो उसकी बड़ी डिस्टिंक्टिव जो बिल्डिंग्स हैं वो इसी लाइम स्टोन की बनी हुई हैं. तो वो कहता है कि आई हैव स्टार्टेड एफिलिएटिंग माई सेल्फ टू द स्टोन्स ऑफ पेरिस, टू द कैथीड्रल एट चार्ट्रेस. Cathedral at Chartres, it is one of the most beautiful and historically significant cathedral of all Europe. तमाम यूरोप का सबसे तारीखी कैथीड्रल है कैथीड्रल एट चार्टस. एंड टू द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज द हाइएस्ट बिल्डिंग. इट्स अ स्काई स्क्रैपर ऑफ 102 स्टोरी बिल्डिंग है. ये 102 स्टोरीज हैं इस बिल्डिंग की. ह्यूज बिल्डिंग. A spatial attitude. A spatial attitude means that he says that I have started affiliating with these writers, with these places, because I have started living here. I have developed spatial familiarity with these things, but these were not really my creations. ये मेरी creations नहीं थी. They did not contain my history. मेरी जो हिस्ट्री है वो इन जगहों पे मौजूद नहीं है. I might search in them in vain forever for any reflection of myself. मैंने शेक्सपियर को पढ़ा, मैंने बाक को, रैम्ब्रेंट को अप्रिशिएट किया, मैंने बहुत हाई बिल्डिंग्स जो हैं पेरिस की, मैं यहाँ पे कैपिटल में भी रहा, यहाँ भी घूमा फिरा, मैंने हर जगह देखा. कहीं भी मेरी जो हिस्ट्री है वो इनमें कहीं भी मुझे नहीं मिली. बिकॉज दिस इज ओनली माई हिस्ट्री, दिस इज ओनली माई बैकग्राउंड. मैंने उसको देखना है. आई कैन नॉट डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम माई बैकग्राउंड. ठीक है, मैं जहां कहीं भी जाऊंगा, माई पास्ट, माई हिस्ट्री, माई बैकग्राउंड विल लिव विद मी. चाहे बहुत बड़े ह्यूज बिल्डिंग्स के दरमियान हूँ, बहुत बड़े बड़े राइटर्स से खुद को अटैच करना चाहता हूँ, उनको पढ़ना चाहता हूँ, उनसे फेमिलियर होना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी कहीं भी मुझे अपनी हिस्ट्री नहीं मिलती. मेरी हिस्ट्री सिर्फ मुझसे ही अटैच है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. सो ही सेज, वो कहता है कि राइटर को हमेशा, एक अच्छा राइटर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही हैज टू गो बीनीथ द सर्फेस, ही हैज टू टैप द सोर्स. Doesn't matter how unpleasant it is. Now he says that I was an interloper. Interloper is intruder.
वो कहते हैं कि मैंने अगर शेक्सपियर के बारे में बात की, उसका रेफरेंस दिया, रैम्ब्रेंट का रेफरेंस दिया, ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट पेंटर, लेकिन ये कि मेरी उनसे कोई हिस्टोरिकली कोई उनसे रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, मैं तो एक इंट्रूडर हूँ, मैं तो एक इंटरफेयर करने वाला हूँ, दिस वॉज नॉट माई हेरिटेज, ये मेरा विरसा नहीं है. At the same time, I had no other heritage which I could possibly hope to use. और मेरा कोई और भी कोई हेरिटेज नहीं है, कोई विरासत नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है जो मैं उसको यूज़ करके मैं आगे बढ़ सकूं. I had certainly been unfitted for the jungle or the tribe. और ऐसा भी नहीं है कि मैं जंगलों में निकल जाऊं, ठीक है, और कुछ ऐसे कबीलों के अंदर निकल जाऊं जहां मैं अपने आइडेंटिटी को छुपा सकूं, ऐसा भी नहीं हो सकता. आई वुड हैव टू अप्रोप्रिएट दीज वाइट सेंचुरीज. अप्रोप्रिएट, आई हैव टू यूज, I have to make use of these years which I have spent in the white community. I would have to make them mine. Definitely, where a person lives, he develops affiliation with those places, with those people. कहते हैं मैंने इन लोगों को अपना, इन जगहों को भी मैं अपना मानता हूँ. I would have to accept my spatial attitude, my spatial place in this scheme. Otherwise, I would have no place in any scheme. कहते हैं कि मेरी एक खास जगह है, ये जो वर्ल्ड स्कीम है, ये जो सोशल स्कीम है, उसमें मेरी एक खास जगह है. आई हैव माई एटीट्यूड. डेफिनेटली ही मीन्स टू से दैट आई हैव माई ओन आइडेंटिटी. मेरी एक आइडेंटिटी है, डेफिनेटली मैंने उसी का यूज करना है, ठीक है, मैंने उसी के साथ आगे बढ़ना है, मैंने उसी के साथ दूसरी कम्युनिटीज के अंदर जाके रहना है. व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वाज द फैक्ट दैट आई वाज फोर्स्ड टू एडमिट समथिंग आई हैड ऑलवेज हिडन फ्रॉम माई सेल्फ, विच द अमेरिकन नीग्रो हैज हैड टू हाइड फ्रॉम हिमसेल्फ एज द प्राइस ऑफ हिज पब्लिक प्रोग्रेस, दैट आई हेटेड एंड फियर्ड वाइट पीपल. कहते हैं कि एक चीज, एक फैक्ट है जो मैंने एडमिट करना है, जो हमेशा मैं अपने आप से छुपाता रहा. ना सिर्फ मैं, बल्कि हर अमेरिकन नीग्रो जो है, ही वांट्स टू हाइड इट. और जाहिरी बात है, अगर वो ओपनली इस चीज को डिस्क्राइब करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, लोग उसके दुश्मन हो जाएंगे. और वो क्या चीज है कि हमेशा नीग्रोज ने सफेद लोगों से, वाइट रेस से नफरत की है और उनसे खौफ है, उनसे डर लगता है, क्योंकि इन वाइट लोगों के जेरे असर ये बहुत बहुत अरसा जुल्म का शिकार बने रहे. दिस डिड नॉट मीन दैट आई लव्ड ब्लैक पीपल. कहता अगर मैं वाइट से नफरत करता हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं ब्लैक से प्यार करता हूं. ऑन द कॉन्ट्ररी, I despise them. I hate them too. मैं ब्लैक लोगों से भी नफरत करता हूँ, possibly because they failed to produce Rembrandt. क्यों ऐसा हुआ? क्यों वो आगे नहीं बढ़े? उन्होंने Rembrandt जैसे लोग, ये जो ग्रेट पेंटर है, उस जैसे लोग क्यों नहीं प्रोड्यूस किए? क्यों वो खौफ तले दबे रहे हमेशा? उन्होंने अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को क्यों नहीं यूज किया? इन इफेक्ट वो कहते हैं कि शायद वो चेंज नहीं चाहते थे, वो हमेशा उन्होंने समझा कि वो आवाज उठाएंगे तो वो उनको मार दिया जाएगा उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी सप्रेस थे, वो गुलाम थे, वो स्लेव्स थे वाइट लोगों के. तो लेकिन वो कहते हैं कि मैं भी तो हूं, मैंने भी तो आवाज उठाई है, मैंने भी तो लिखना शुरू किया है, मैंने भी तो पढ़ना शुरू किया. चाहे मेरे कितनी दुश्मनी, ये जो सोशल एटीट्यूड है, ये हमेशा मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, मुझे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन चेंज तो आया ना. मैंने आवाज उठाई, मुझ जैसे बहुत से लोगों ने आवाज उठाई, तो चेंज तो आया ना. हाउएवर लेट इट वॉज, ये लेट था, बहुत देर से आया कुछ भी, लेकिन हमारी आवाज का असर तो हुआ. तो क्यों नहीं ब्लैक लोग इकट्ठे हो गए? क्यों नहीं उठ खड़े हुए जुल्म के खिलाफ? उन्होंने रैम्ब्रेंट जैसे लोग क्यों नहीं प्रोड्यूस किए? जो वेस्ट में शेक्सपियर है, रैम्ब्रेंट है, और बहुत से लोगों का उसने नाम लिया. तो हमारे यहाँ ब्लैक लोगों में ऐसा क्यों नहीं कोई आया सामने? इन इफेक्ट आई हेटेड एंड फियर्ड द वर्ल्ड. कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे दुनिया से नफरत भी थी, मैं दुनिया से खौफ खाता था. And this meant not only that I thus gave the world an altogether murderous power over me, but also that in such a self-destroying limbo I could never hope to write. कहते हैं कि ना सिर्फ दिस मेंट नॉट ओनली दैट आई दस गेव द वर्ल्ड ऑल टुगेदर मर्डरस पावर ओवर मी. ज़ाहिर दुनिया से अगर मैं खौफ खा रहा था तो जाहिर बात है, डरने का मतलब यही है कि आप दूसरों से डरने का मतलब यही है कि दूसरों को आप ताकतवर बना रहे हैं अपने ऊपर गलबा पाने के लिए. तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ. लेकिन उस सेल्फ डिस्ट्रॉइंग लिम्बो इज द डीप हेल
जहाँ पे सफरर्स जो होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, डीप हेल होता है, आई कुड नेवर होप टू राइट। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी लिखने की कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। वन राइट्स आउट ऑफ वन थिंग ओनली, दैट इज वंस ओन एक्सपीरियंस। कहते मैं दुनिया में घूम के, दुनिया तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी बिकॉज आई बिलोंग टू द ब्लैक रेस। उसके कहने का मतलब ये है कि दुनिया को मैंने अपने ऊपर पावर दे दी, जाहिर बात है, क्योंकि वो दुनिया जो है वो पावरफुल है। ठीक है, मैं ब्लैक रेस में हूं, मैं जितना भी आगे जाऊंगा मुझे इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस लूज करता रहूंगा कि मेरी हिस्ट्री जो है वो ब्लीक है, मैं ब्लैक रेस से बिलोंग करता हूं। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस को सामने रख के तो लिखना शुरू कर दिया ना। वन राइट्स आउट ऑफ वन थिंग ओनली, दैट इज वंस ओन एक्सपीरियंस। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ रिलेंटलेसली वन फोर्सेस फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस द लास्ट ड्रॉप, whether it is sweet or bitter it can possibly give। आपका अपना एक्सपीरियंस जो है उसकी बेस पे आप लिख सकते हैं लास्ट ड्रॉप तक, चाहे वो स्वीट है या बिटर है, whatever it is, your experience will encourage you to write। This is the only real concern of the artist, to recreate out of the disorder of life that order which is art। कहते हैं यही राइटर का रियल कंसर्न है कि वो डिसऑर्डर्ड लाइफ से एक ऐसा ऑर्डर तैयार करे जिसको आर्ट का नाम दिया जाता है। द डिफिकल्टी देन फॉर मी ऑफ बीइंग अ नीग्रो राइटर वॉज द फैक्ट दैट आई वॉज इन इफेक्ट प्रोहिबिटेड फ्रॉम एग्जामिनिंग माई ओन एक्सपीरियंस too closely by the tremendous demands and the very real danger of my social situation। कहते हैं मुझे तो डेफिनेटली एक ही नीग्रो राइटर होने की हैसियत से मुझे यही डिफिकल्टी थी कि एक सोशल ऑर्डर के अंदर लिख के मैं लिख रहा हूं अपने एक्सपीरियंसेस और रियल एक्सपीरियंसेस को सामने ला रहा हूं। वैसे तो पहले भी नीग्रोज के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन मैं रियल एक्सपीरियंसेस को एक्सपोज करने जा रहा हूं। तो ये सोशल सिचुएशन के अंदर ये सही, ये रियल, इट वॉज अ रियल डेंजर। आई डोंट थिंक द डिलेमा आउटलाइंड अबव इज अनकॉमन। आई डू थिंक सिंस राइटर्स वर्क इन डिजास्ट्रसली explicit medium of language that it goes a little way towards explaining why out of the enormous resources of Negro speech and life, and despite the example of Negro music, prose written by Negro has been generally speaking so pallid and so harsh। Negro ने जो out of experience जो prose लिखा ये weak भी है और बहुत harsh भी है। I have not written about being a Negro at such length because I expect that to be my only subject, but only because it was the gate I had to unlock before I could hope to write about anything else। कहते हैं कि मैंने क्यों नीग्रोस के बारे में लिखा, मैंने इसलिए लिखा कि मुझे अपने पास्ट से रिलोकेट करना है। वो उसी पॉइंट पे वापस आ रहा है राइटर यहाँ पे कि जब तक आप अपने पास्ट से नहीं जुड़े रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैंने नीग्रोस के बारे में इसलिए लिखा कि इसके बाद मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट्स भी उठा सकता हूं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं किसी और चीज के बारे में भी लिख सकता हूं। आई डोंट थिंक दैट द नीग्रो प्रॉब्लम इन अमेरिका कैन इवन बी डिस्कस्ड कोहेरेंटली विदाउट बियरिंग इन माइंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? बीइंग द हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, मॉरल assumptions, preoccupations of the country। वो कहते हैं कि अमेरिका में नीग्रो प्रॉब्लम के बारे में आज तक किसी ने डिस्कस इस तरह से नहीं किया विदाउट इट्स कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने कॉन्टेक्स्ट को लिया ही नहीं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? उनकी असल हिस्ट्री, उनके ट्रेडिशंस, उनके कस्टम्स, उनके मॉरल अजम्पशंस क्या हैं, प्रीऑक्यूपेशंस क्या हैं। सो इन शॉर्ट द जनरल सोशल फैब्रिक में उन्होंने नहीं लिखा। अपीयरेंसेस टू द कॉन्ट्री, नो वन इन अमेरिका एस्केप्स इट्स इफेक्ट्स एंड एवरी वन इन अमेरिका बेयर्स सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। अब जाहिर बात है नीग्रो जो है, जाहिर है लिखा गया, हिस्ट्री लिखी गई, ट्रेडिशंस, कस्टम्स लिखे गए, तो क्या हुआ? कोई भी इसके इफेक्ट से नहीं बचा। वाइट भी और ब्लैक भी दोनों पे इसका इफेक्ट हुआ। And I believe this the more firmly because it is the overwhelming tendency to speak of this problem as though it were a thing apart। वो कहता है कि ये एक ओवरवेलमिंग टेंडेंसी थी कि नीग्रोस के प्रॉब्लम पे बात करना, कि लोग कहते थे जैसे ये से डिफरेंट सी दुनिया है, ये एक बहुत ही अलग सा टॉपिक है। थिंग अपार्ट मीन्स कि बहुत ही डिस्टिंक्ट सा ये टॉपिक है। ठीक है, लोग इसके बारे में इस तरह से डिस्कस करने लगे और इसको करना पसंद करते थे जैसे ये कोई और दुनिया है, कोई अलग सी चीज है। बट इन द वर्क ऑफ
Faulkner, he refers to an American writer in the general attitude and certain specific passages in Robert Penn Warren, and more significantly in the advent of Ralph Ellison, one sees the beginnings. He appreciates all these writers and poets for writing in favor of the Negroes, at least that they wrote genuinely about द नीग्रोस. वो अप्रिशिएट करते हैं राइटर्स को कि इन्होंने सही नीग्रोस के बारे में जेन्युइनली लिखा, डिवोटेडली लिखा, एटलीस्ट फॉर मोर जेन्युइनली पेनिट्रेटिंग रिसर्च. इन्होंने बहुत रिसर्च करके उनकी बेस तक पहुंच के, उनकी हिस्ट्री तक पहुंच के तब उनके बारे में, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया. मिस्टर एलिसन स्पेशली बाय द वे इज द फर्स्ट नीग्रो नॉवेलिस्ट आई हैव एवर रेड टू यूटिलाइज इन लैंग्वेज एंड ब्रिलियंटली some of the ambiguity and irony of Negro's life. Now here he appreciates Ralph Ellison. He praises him for being the first writer he has encountered that represented the black experience in all its ambiguity and irony. वो मिस्टर एलिसन को अप्रिशिएट करता है कि उसने बहुत ज़्यादा उसने यूटिलाइज किया लैंग्वेज के अंदर, उसने तमाम चीज़ों को एक्सपोज करके रख दिया. नीग्रोज की लाइफ की जितनी भी एम्बिग्विटीज़ थी, आयरनीज थी, उनको हाईलाइट किया. नाउ ही कम्स टू हिज ओन इंटरेस्ट. वो कहता है जहाँ तक मेरा कंसर्न है अबाउट माई इंटरेस्ट, आई डोंट नो इफ आई हैव एनी, unless the morbid desire to own a 16mm camera and make experimental movies can be so classified. वो कहते हैं जहाँ तक मेरे इंटरेस्ट की बात है, if I have any interest, so वो कहता है कि मेरा इंटरेस्ट ये है कि मेरे पास 16mm कैमरा हो और मैं एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स बनाऊं. ठीक है. इसके अलावा आई लव टू वट एल्स आई लव टू ईट एंड ड्रिंक. इट्स माई melancholy conviction that I've scarcely ever had enough to eat. This is because it's impossible to eat enough if you are worried about the next meal. क्यों मैं अपने खाने को एंजॉय करता हूँ. कहता है कि आई लव टू ईट, मैं इसलिए, और मैं अपने खाने को इसलिए एंजॉय करता हूँ कि मैं अगले मील के बारे में नहीं सोचता. आप अपने प्रेजेंट खाना जो आपके आगे आपके सामने मौजूद होता है, आप उसको इसलिए एंजॉय ना करें कि आपको नेक्स्ट खाने की फिक्र हो कि वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से अरेंज होगा, तो आप अपने प्रेजेंट को भी एंजॉय नहीं कर सकते. दैट्स वाई आई लव टू ईट. मैं अपने खाने को एंजॉय करता हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट मील के बारे में नहीं सोचता. सो he says, I love to argue with people who do not disagree with me too profoundly, and I love to laugh. I don't like bohemia or bohemians. Bohemians are the writers who are unconventional, जो realities को नहीं देखते बल्कि दुनिया के साथ यानी उसी गंगा में बहते जाते हैं. I don't like people whose principal aim is pleasure, जो कि मतलब hedonistic लोग होते हैं जिनका मकसद ही सिर्फ खुशी होता है, प्लेजर होता है. I don't like people who are earnest about anything. I don't like people who like me because I am a Negro. यानी sometimes मुझ पे तरस खा के अगर मेरे साथ बैठते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो I don't like them. Neither do I like people who find in the same accident grounds for contempt. Who find in the same accident grounds for contempt, जो कि मुझे डिसलाइक करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ माई रेस, यानी मेरे रेस को देख के जो मुझे नापसंद करते हैं. आई लव अमेरिका. वो कहते हैं मुझे किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न अमेरिका है बिकॉज दिस इज़ माई होम लैंड. आई लव अमेरिका मोर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन आई इंसिस्ट ऑन द राइट टू क्रिटिसाइज हर परपेचुअली. वो कहता है कि मैं अपना हक समझता हूँ क्योंकि अमेरिका से मैं प्यार करता हूँ. अमेरिका इज़ माई बर्थ प्लेस. मैं उससे प्यार करता हूँ तो ये मेरा हक है कि मैं उसको क्रिटिकली देखूं. मैं उसको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, मैं उसकी पॉलिसीज़ को, उसके रूल्स रेगुलेशंस को, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं विच आर अनफेयर टूवर्ड्स द पीपल, मैं उनको क्रिटिसाइज भी करने का हक रखता हूँ. आई थिंक ऑल थियरीज आर सस्पेक्ट that the finest principles may have to be modified. ये जो जितनी भी थियरीज इन्होंने बनाई हुई हैं, जो अमेरिकन ड्रीम की तरह की चीज़ें या पॉलिसीज़ या रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए हैं, ये इट इज़ नो मोर देन अ सस्पेक्ट.
जो इनके फाइनेस्ट प्रिंसिपल्स हैं उनको भी मॉडिफाई करने की जरूरत है, उनको चेंज करने की जरूरत है, मे इवन बी पल्वराइज्ड बाय द डिमांड्स ऑफ लाइफ। जैसे आज जिंदगी की डिमांड है, उसकी वजह से आप अपने ये जो जिन प्रिंसिपल्स को फाइनेस्ट प्रिंसिपल्स कहते हैं उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय भी करें। वो कहते हैं कि आपको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है इनको। Pulverized means destroy completely by the demands of life, and that one must find therefore one's own moral center and move through the world hoping that this center will guide one aright. वो कहते हैं सिर्फ अपने what should be your constitution should not be your center, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन तो फर्क भी कर रहा है ब्लैक और वाइट के दरमियान। इस कॉन्स्टिट्यूशन में तो इक्वालिटी थी, लेकिन कहाँ इक्वालिटी पाई जाती है ब्लैक और वाइट के दरमियान? देयर इज नथिंग देयर। तो इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर लें। सिर्फ what you need to see and take guidance from is your own morality, is your own moral sense. आपके अंदर जो moral sense है आपको सिर्फ वही सही गाइड कर सकता है। I consider that I have many responsibilities but none greater than this, to last, as Hemingway says, and get my work done. I want to be an honest man and a good writer. कहता है मेरी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी नहीं है कि आई वॉन्ट टू बी एन ऑनेस्ट मैन, आई हैव टू बी एन ऑनेस्ट मैन, आई हैव टू बी अ गुड राइटर, एन ऑनेस्ट राइटर। वो कहता है ये मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक राइटर की भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होनी चाहिए। In short, the writer means to say that black people must be treated as equal human beings before any real understanding or progress on racial injustice can take place. He definitely strives, this writer strives for skepticism. He strives for honesty and places the greatest value on getting his work done. वो कहता है कि मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपना काम एज अ राइटर, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरा करूं, एंड नॉट ओनली अ राइटर बट एन ऑनेस्ट राइटर, so that my writings may bring a positive change in the society. Because at the time Baldwin is writing, many people assume that the Negro problem is something that affects black Americans alone, and therefore that only black people should have to address it. कहते कि ये लोगों की गलत फहमी थी कि ये सिर्फ जो ब्लैक रेस है सिर्फ ये उनका मसला है, ये सिर्फ उनका मसला नहीं था। Baldwin corrects this delusion in this essay by pointing out that as much as being black is a definitive part of his identity, it is also an accidental attribute that does not determine who he is as a person or disconnect him from people of the other races. वो कहता है वो जो कुछ भी है accidentally वो he belong to the black race, but it does not mean that he is detached from the white people. Black and white are together, they are the part of America. Without black people, Americans, white races cannot make any progress, or without white people, black people cannot make progress. उनकी प्रोग्रेस जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, वो दोनों जो हैं वो पार्ट ऑफ अमेरिका हैं, दोनों की वजह से अमेरिका ऑल टुगेदर प्रोग्रेस करेगा, डेवलपमेंट वहां पे होगी, सिर्फ वाइट रेसेस के बेस पे नहीं होगी, बिकॉज ब्लैक आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अमेरिका. So this is all about autobiographical notes by James Baldwin. I hope this was easy for you to understand. Please don't forget to like and do write your comments please, and share it with your friends and subscribe it if you have not subscribed before. Thank you. Allah Hafiz.